تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فیصلے ہونے والے یار شروع ہو گیا جی. شروع کرو حضرت. موجود ہے, چلو اپنے واپس سے موجود ہے. چپ کرتے. یہ جو چیزیں تھی آپ نے دیکھ لی, جو گواہ تھے وہ بھی پیش ہو چکے بحمداللہ. آپ ضد کا علاج حکیم حکمران کے پاس بھی نہیں تھا, ان کو استغفار کرنا چاہیے اس چیز پر اور تجدید ایمان بھی کرنا چاہیے, کیونکہ گواہوں کی گواہی آ چکی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا نظریہ یہ ہے اور تمام مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہے. اس پر میں قرآن مجید کی پہلی آیت پیش کرنے لگا ہوں. اللہ کا اب یہ قرآن میں نہیں سنتے, قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک. اب اس لیے میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے یہیں پر رہنا ہے. اس دن بھی اس چیز سے جان چھڑائی, آج بھی کہ چیز عوام کے سامنے آیا نہ ہو. میں نے جو سورہ آل عمران کی آیت پڑھی, اس میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ وَمَكَرُوا, انہوں نے مکر کیا, خفیہ تدبیر کی, وَمَكَرَ اللَّهُ, اور ایک اللہ نے تدبیر کی. انہوں نے تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی, اللہ رب العزت نے تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی. اب تمام امت کا, مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی, وہ تدبیر کامیاب ہوئی کہ ناکام ہوئی؟ کامیاب. صاحب اگر مجھے ضمانت دیں کہ آپ تشریف لے آئے, کچھ نہیں ہوگا اور مجھے کچھ ہو جائے تو یہ حافظ صاحب کی توہین ہے, اور جس حضرت عیسیٰ کی ضمانت اللہ دے اس کی کیا کہنے. یہ میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کر دی. اب اس کے بعد انشاءاللہ بہت سی احادیث ہیں, یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے, اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ شاید جو لوگ اس چیز کے منکر ہیں انہیں اسلام کی دولت نصیب ہو جائے. یہ باب نزول عیسیٰ بن مریم حاکما بشریعت نبینا محمد, یہاں پر حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس, قرآن پر رکے, حدیث کے منکر ہیں, اپنی تقریر میں بولیں. پہلی چیز اپنی تقریر میں بولیں. آپ کہہ دیں میں حدیث کا منکر ہوں, پھر میں قرآن پر بات کروں گا. آپ کہہ دیں میں حدیث کا منکر, واللہ میں قرآن سے ایک لفظ بھی باہر نہیں نکالوں گا. اور یار اصلی شاتی ہیں ہم, توحید کا روحانی خون ہمارے اندر ہے. قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں, پڑھانا بھی جانتے ہیں, سمجھانا بھی جانتے ہیں. آپ کہہ دیں میں حدیث کا منکر ہوں, اگر کہہ دیں حدیث کا منکر تو میں قرآن پیش کرتا ہوں. اس لیے یہ ایک حدیث ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویذکر الخنزیر ویعلو الجزیۃ. اور اس کے
کے بعد دوسری حدیث آپ سن لیں، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا. تیسری حدیث سن لیں، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. چوتھی حدیث سن لیں، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امکم. پانچویں حدیث، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم. چھٹی حدیث، فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم تعال صلی لنا فیقول لا. یہ میں نے 7 حدیثیں پیش کر دی. انشاءاللہ آگے میں قرآن مجید کی بے شمار آیتیں بھی پڑھوں گا اور حضرت صاحب کے سامنے انشاءاللہ پوری 100 سے زائد حدیثیں پڑھ کے اس میں جی جی نہیں بات جو ہماری چل رہی تھی اس میں مفتی صاحب کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ وہ بات نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے نماز کا منکر مجھے کہا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا منکر کہا اور اس اپنے جھوٹی تقریر کے اوپر جھوٹے گواہ پیش کر دیے. ٹھیک ہے نا؟ اور گواہ بھی کون؟ گواہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز کے منکر ہیں. میں نے اس لیے مفتی صاحب سے کہا آپ مولانا جبار صاحب کو اٹھائیں اور ان سے طلاق اللہ طلاق کی قسم اٹھا کر ان سے یہ کہیں کہ مولانا عثمان صاحب نے نماز کا انکار کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا. ابھی تک مفتی صاحب اس طرف نہیں آ رہے، انشاءاللہ اس کو کلیئر کریں گے. اور ابھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ دعوے دار ہیں، آپ نے پہلے بیان کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر آپ خود بخود شروع ہو گئے بیان کرنے کے لیے. اور یاد رکھیے پھر انہوں نے سب سے پہلے قرآن مقدس کی آیت پیش کی ہے اور آیت کے ساتھ پھر انہوں نے حدیثیں پیش کر دی ہیں. مسئلہ چونکہ ان کے نزدیک بھی ایمان کا مسئلہ ہے، ایک عقیدے کا جس کو مسئلہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کا پروف سب سے پہلے قرآن سے ہونا چاہیے. اور انہوں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے، چلو میں اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کو میں اس کی تقریر کا جھوٹا پن بھی ثابت کرتا رہوں گا اور ان کے جھوٹے گواہوں کو بھی نکاب بھی کرتا رہوں گا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ قرآن مقدس کو بھی انشاءاللہ ان کے سامنے رکھوں گا. یہی آیت ہے جس دعوے پر اپنے عقیدے پر جو انہوں نے آیت پیش کی ہے، میں بھی وہی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا. مفتی صاحب صرف ایسی تردن للباب کیسے ٹچ کیا قرآن پاک کو، جس طرح خاموش برکت کے طور پر جس طرح تلاوت ہوتی ہے نا کسی مجلس کے اندر، اور باقی ساری باتیں روایات کی، کہاوتوں کی، قصوں کی، اور برکت کے طور پر قرآن کو ٹچ کرنا اور باقی سارا مسئلہ سارا قرآن کے علاوہ. میرے معزز سامعین دیکھیے قرآن مقدس کی آیت، اللہ تبارک و تعالی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی زندگی کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز کیا، کس کا؟ دعوت توحید کا آغاز کیا. یہودیوں نے چالیں چلی، یہودیوں نے مکر و فریب کیا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے. دیکھو قرآن کی آیت ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے اپنے پیغمبر کو، روح اللہ کو، اپنے اعلیٰ پیغمبر کو، ابن مریم پیغمبر کو اللہ نے تسلی دی ہے. اے میرے پیغمبر، اے میرے عیسیٰ پیغمبر سن لیجئے، اے میرے عیسیٰ یہ ساری باہر چالیں چل رہے ہیں، یہ سارے مکر کر رہے ہیں، آپ تسلی کے ساتھ دعوت دیں، آپ تسلی کے ساتھ میری توحید بیان کریں، آپ تسلی کے ساتھ میری توحید کے ڈنکے بجائیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 4 وعدے اللہ نے آیت میں کیے. کتنے وعدے؟ اور وہ 4 وعدے میں آپ کو سناتا ہوں کہ مفتی صاحب نے نہیں سنا ہے. مفتی صاحب اگر سناتے 4 وعدے، ان کا عقیدہ باطل تھا، ان کی روایتیں یقیناً برملا غلط ہو جاتی. انہوں نے مفتی صاحب نے اس آیت کو صرف برکت کے طور پر پڑھا ہے. 4 وعدے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کیے، مفتی صاحب نے ان کو دیکھا تک بھی نہیں ہے. پہلا وعدہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عیسیٰ پیغمبر آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو وفات دوں گا، ورافعک الیہ، آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک، میں آپ کو ان کافروں سے پاک کر لوں گا، وجاعل الذین اتبعوک، اور جو تیرے پیروکار ہیں، جو تیرے امتی ہیں اور جو تیری توحید کو ماننے والے ہیں، میں ان لوگوں کو فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قرآن پر دیکھیں گے، قرآن پر دیکھتے ہیں.
बड़ा शोर सुनते थे पैरों में दिल का, चीरा तो एक कतरा खून निकला। अब मैंने वक़्त की किल्लत के पेश नज़र आधी आयत पढ़ी, बल्कि पूरी आयत थी वमकर अल्लाह। इसका मौलाना साहब ने जवाब नहीं दिया और क़यामत तक नहीं देंगे। अब आगे जो आयत है, कहते हैं बतौर तबर्रुक के पढ़ा। आगे आयत अल्लाह ताला ने तसल्ली दी। किस चीज़ की तसल्ली दी? आपका अकीदा ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो चुके, आपकी आवाम की मैं मिन्नत करता हूँ, फिक्र आखिरत दिलाता हूँ, खुदा की कसम आपने मरना है मेरे भाइयों। इसकी तरफ न देखो, इस आयत में किस लफ्ज का माना था कि हजरत ईसा फोत हो चुके? किस लफ्ज का माना था कि हजरत ईसा फोत हो चुके? इसमें है इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं आपको मौत दूंगा। वादा मौत है, इसके हम भी कायल हैं। और मौलाना साहब, आप बड़ी सरफराब की बात कर रहे थे। अब मुतवफ़्फ़ी का इसमें फाइल है, और कुरान पाक को आप पढ़ लें, जहाँ पर इसमें फाइल का फाइल अल्लाह हो, वहाँ पर इस्तिकबाल का माना होता है। वैसे भी इसमें फाइल मुश्तक मिनल मुजारे होता है। मुजारे से इसलिए बनता है कि इसमें इस्तिकबाल होता है। मिसाल के तौर पर इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, बना दिया, बनाने वाला हूँ। इसी तरह इन्नी खालिकुम बशरा, मैं बशर बनाने वाला हूँ। वल्लाहु मुखरिजुम, अल्लाह जाहिर करने वाले हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह नूर को मुकम्मल करने वाले हैं। अब जहाँ पर भी इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं आपको इमाम बनाने वाला हूँ इस्तिकबाल में। इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहार, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना, अल्लाह मुनाफिकों को जमा करने वाले हैं। इन्नी मुनज़्ज़िलुहा, इन्नी मुमिद्दुकुम, और इस तरह की दीगर आयत। अब इस आयत का भी माना करें, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं आपको मौत देने वाला हूँ, आपको मौत दूंगा। अब मसला यह है कि मौत दे दी, ये हजरत साहब के जिम्मे था। इस पर ये क़यामत तक नहीं आयत ला सकते। मौत दे दी और आयत ला भी नहीं सकते। मेरा एक सवाल भी हजरत साहब से, आप कहते हैं कि इस मसले, ये इल्मी मसला है, कोई इनकार करे वो मुसलमान है। अब आपने कुरान की आयत पढ़ी, क्या अकीमुस सलात का मुनकिर काफिर है और इसका अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का इसका मुनकिर मुसलमान क्यों? ये आपके जिम्मे आपने बताना है। और अल्लाह ताला ने 4 वादे किए, हम भी कहते हैं वो 4 वादे, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं आपको तभी मौत दूंगा, या अल्लाह आप फरमाते हैं मौत दूंगा, ये तो अभी मेरे मारने के दर पे है। अल्लाह ने फरमाया राफ़िउ का इलैया। अब बचने की सूरत ये है, राफ़िउ का इलैया, मैं आपको अपनी तरफ उठा लूंगा, या अल्लाह आप उठा लेंगे। आना तो फिर इन्हीं में है, फिर इन्हीं में आना है। फरमाया नहीं, वमुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफरू। फिर सवाल पैदा हुआ, या अल्लाह मुझे तभी मौत मिलेगी, फिलहाल उठा लेंगे, इन बेईमानों से जान छूट जाएगी, या अल्लाह मेरे जो पैरोकार हैं उनका क्या बनेगा? चौथा वादा किया कि आपके जो पैरोकार है फौकल्लज़ीना कफरू, इनको मैं हमेशा गालिब रखूंगा। अब यहाँ पर ये हजरत साहब कह रहे थे कि कुरान की तहरीफ, अब मैं इंशाल्लाह इनको बताऊंगा राफ़िउ का। अब यहाँ पर रफा का माना करेंगे, रफा का माना करेंगे और आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इस पर अब लंबी तकरीर, मैंने 8 हदीसें पढ़ी, मौलाना साहब ने उन हदीसों का जवाब नहीं दिया। अब नवी हदीस सुन ले, हजरत इब्ने अब्बास से, यंज़िलु अखी ईसा इब्न मरियम मिनस समा। नवी हदीस हजरत अबू हुरैरा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयूशिकन्ना यंज़िल फीकुम। और 11वीं हदीस अन्ना अबा हुरैरा क़ाल कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। मैंने 11 हदीसें पढ़ दी, 2 आयतें पढ़ दी, जवाब नहीं आया। अगली आयत और सुन ले, युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला। अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत ईसा सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। मुफ्ती साहब ने सबसे पहले मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि इन्होंने वमाकरू व मकरुल्लाह का जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दिया है कि वमाकरू व मकरुल्लाह, यहूदी बाहर ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चालें चल रहे हैं, मारने की चालें चल रही हैं, उनकी दावत को रोकने की चालें चल रही हैं, और अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने की चाल और बचाने की तदबीर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला की तदबीर सबसे आला है। बेहतरीन तदबीर करने वाला कौन है? एक अल्लाह। अब देखिए, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन गौर कीजिए,
तवज्जो कीजिए, मैं कहता हूँ इबरत का मकाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है। तसल्ली जिंदा को दी जाती है या मुर्दे को दी जाती है? जिंदा को दी जाती है। जिंदा पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है और उनकी जिंदगी के अंदर अल्लाह पाक उनसे 4 वादे फरमा रहे हैं। कितने वादे? 4 वादे फरमा रहे हैं। पहला वादा है मुतवफ़ी का, ये तुम्हें नहीं मार सकते, वफात आपको दूंगा। मुफ्ती साहब ने कहा मुजारे का सीगा है, मुस्तकबिल के माने में आता है। किसने कहा है कि ये माजी का सीगा है? किसने कहा है कि इसका हाल का माना होगा? आपको किसने कहा है? यकीनन ये मुजारे का सीगा है, मुस्तकबिल का माना है। आगे लफ्ज है वराफ़िओ का, वो भी ये यकीनन इस्म फ़ाइल का सीगा है। मुतवफ़ी का भी इस्म फ़ाइल का सीगा और राफ़िओ का भी इस्म फ़ाइल का सीगा है। मुतवफ़ी का भी इस्म फ़ाइल और राफ़िओ का भी इस्म फ़ाइल। जहाँ मुतवफ़ी मुस्तकबिल में होगा तो फिर रफ़ा भी क्या होगा? मुस्तकबिल में होगा। यानी फिलहाल जब मौत नहीं हुई तो रफ़ा भी फिलहाल नहीं हो सकता, वरना हाल का माना आप रफ़ा के अंदर हाल का माना कर रही हैं और तवफ़ी के अंदर मुस्तकबिल का माना कर रहे हैं। किस कहते के तहत कर रही हैं? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े, मैं बनाने वाला हूँ जमीन में। अल्लाह पाक ने बाद में बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। अब राफ़िओ का ये भी मुस्तकबिल है, मुतवफ़ी का ये भी इस्म फ़ाइल मुस्तकबिल के लिए है। अब मेरे दोस्तों दोनों वादे अल्लाह पाक ने किए। पहला वादा, एक मिनट, पहला वादा कौन सा किया है? पहला वादा मुतवफ़ी का है, राफ़िओ का? पहला वादा मुतवफ़ी का और दूसरा वादा राफ़िओ का। कुरान का ऐलान है, तावील करने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए, तावील करने की इजाजत नहीं है। पैगंबर को अल्लाह ने तसल्ली दी है, ऐ मेरे रूहुल्लाह पैगंबर, आप मेरी तौहीद बयान करते रहें, आप मेरी तौहीद के चर्चे करते रहें, ये आपको नहीं मार सकते। ये समझते हैं कि उधर से मारने के लिए आए, इधर से अल्लाह पाक ने उनको उठा लिया। उनका तो मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यहूदियों का मकसद पूरा हो गया, ना रहेगा ना दावत चलेगी। हम कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने डंके की चोट दावत दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने भी मुकाबला किया है। मैं कुरान की आयत पेश करता हूँ। मुफ्ती साहब कह रही हैं कि उधर से दावा शुरू की, उधर से मुखालफत हो गई, उधर से अल्लाह पाक ने जल्दी जल्दी क्या कर लिया? उठा लिया। मुफ्ती साहब खुदा का खौफ कीजिए। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, वफात मैं दूंगा, आपको उठा लूंगा, आपके बदन को, आपको भी मैं इन काफिरों के हाथों से बचा लूंगा। चौथा वादा किया है, आपके पैरोकारों को मैं क़यामत तक क्या दूंगा? मैं पूछना चाहता हूँ, ये 4 वादे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी जिंदगी के अंदर के हैं या उनके वफात के बाद के हैं? वफात को तो ये मानते नहीं है ना। अब ये वादे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जब वो जिंदा थे, जब वो अपनी कौम में मौजूद थे, अल्लाह ने ये 4 वादे किए। पहला वादा मुतवफ़ी का, दूसरा वादा राफ़िओ का, तीसरा वादा मुताहिरो का, चौथा वादा वजाइल लज़ीना तबऊ का। मैं कहता हूँ पहला वादा पूरा हुआ, दूसरा भी पूरा हुआ, तीसरा भी पूरा हुआ, चौथा भी पूरा हुआ है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि नहीं, पहला पूरा नहीं हुआ, दूसरा हो चुका है। मुतवफ़ी का कहते हैं वादा पूरा नहीं हुआ, मुफ्ती साहब कहते हैं राफ़िओ का तो हुआ है, लेकिन मुतवफ़ी का, भाई राफ़िओ का भी वादा है, मुतवफ़ी का भी क्या है? वादा है। जिस तरह राफ़िओ का वादा पूरा हुआ है, उससे पहले मुतवफ़ी का वादा अल्लाह ने किया पूरा हुआ है। और जब मुतवफ़ी का के वादे को तस्लीम नहीं करता, मैं कहती, इन्होंने कहा हुक्म जारी करें। मेरे भाई, मैंने कहा है कि हम इस्तिदलाल की बात करते हैं, हुक्म हम जारी नहीं करते। इल्मी बहस है, इल्म के साथ गुफ्तगू, और कुरान से मुकाबले में कोई इल्म चल सकता नहीं है। 1000 रिवायतें पेश कर दे मुफ्ती साहब, 1000 रिवायतें पेश कर दे। थोड़ी सी खामोशी इरशाद फरमाएं, थोड़ा सा प्लीज। वमाकरू वमाकर अल्लाह, कहते हैं ये तसल्ली है। तसल्ली हयात है या मौत है? तसल्ली है कि हयात की, और हजरत साहब ने साबित करनी थी मौत। दूसरी चीज, इनका दावा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके। इस तरह के लफ्ज कुरान से नहीं दिखाए और क़यामत तक नहीं दिखाएंगे। बाकी मैंने 11 हदीसें पढ़ी, किसी एक हदीस का जवाब नहीं दिया। बाकी इन्होंने कहा, मैं सनद भी पढ़ता हूँ। आपको सनद पर एतराज है, जिस मर्जी पर आप इशारा लगाएं, मैं सनद पढ़ूंगा, ताबेदार है, आपकी खिदमत करके जाएंगे। अच्छा, एक मिनट, आपने कहते हैं
जिंदा को तसल्ली दी, माशाल्लाह हजरत मान गए। फिर हमने कहा मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ियुका इलैया व मुताहिरु, कहते जाइलून, जिस तरह ना मैं बनाने वाला हूँ इसी तरह राफ़ियु मैं उठाने वाला हूँ। हम भी तो यही कहते हैं उठाने वाले हैं। हजरत आपकी इत्तिला के लिए अर्ज कर दूं कि वाव जो होती है ये जमा मुतलक के लिए होती है। अल वाउ लिजमइल मुतलक ला लितरतीब। उसूल शाशी पढ़ ले, कोई किताब पढ़ ले, और आप किताबों की तरफ नहीं जाते, चलो कुरान वाव बनाए जमा की। एक जगह पर कुरान कहता है वदखुलुल बाबा सुज्जदम वकूलू हिद्दतुन, और दूसरी जगह पर कहता है वकूलू हिद्दतुन वदखुलुल बाबा। अब वाकिया एक है, एक जगह पर हिद्दतुन पहले, दूसरी जगह पर बाद में। अब आयत झूठी है सच्ची? सच्ची। अब इसी तरह कुरान की आयत वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया, अल्लाह ने तुम्हें निकाला तुम्हारी माओ के पेटों से, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। वाजअला, ये वाव आ गई ना तरतीब के लिए, माँ के पेट से पहले निकाला, मुतवफ़्फ़ी का पहले, राफ़ियु का बाद में। अब माँ के पेट से अल्लाह ने पहले निकाला और जअलकुमुस समा, कान बाद में बनाए। बोले बोले हजरत आपके दोस्त भी। अब अगर वाव तरतीब की है तो फिर माना माँ के पेट में पहले बंदा बन गया, फिर बाहर आ गया, बाद में अल्लाह ने कान पैदा किए, बाद में आके की, इसलिए वाव तरतीब के लिए नहीं होती। अब मैं तीसरी आयत पेश करने लगा हूँ कुरान पाक की, तीसरी आयत कुरान पाक की पेश करने लगा हूँ। युकल्लिमुन नास बिल महदी व कहला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में भी गुफ्तगू करेंगे, कहलन कहूलत की उम्र में भी। मेरा सवाल है हजरत कहूलत की उम्र में आप भी मुनाजरा कर रहे हैं, कहूलत की उम्र में मौलाना अब्दुल जब्बार साहब भी गवाही दे रहे हैं, कहूलत की उम्र में सारे बोलते हैं, हजरत ईसा की तखसीस क्यों? यानी कहूलत की उम्र में हर बंदा बोलता है। ये इशारा था किस्सा अजीबा की तरफ कि किस्सा अजीबा के बाद, आसमान से नाजिल होने के बाद आपकी ये गुफ्तगू खुसूसियत का मेयार थी, इसलिए इसका खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया। और अल्लामा आलूसी रूहमानी में फरमाते हैं वसयुकल्लिमुहुम इज़ा क़तलत दज्जाला व हुवा यौमइज़िन कहलुन, वो दिन होगा। अब मैंने 12 हदीसें पेश की, हजरत ने जवाब नहीं दिया। 13वीं हदीस सुन लें, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयूशिकन्न अन यंज़िला फीकुम इब्नु मरियम हाकमन मुक़सितन फयक्सिरु सलीबा व यक़्तुलुल खिंज़ीरा। ये तिरमिज़ी है और आगे इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। वाह सुभान अल्लाह। ठीक है, अगली 13वीं हदीस, अल अंबिया इख़वतुन दीनुहुम वाहिदुन व उम्महातुहुम शत्ता व अना अव्वलुन नासी बिईसा लिअन्नहु लम यकुन बैनी व बैनहु नबिय्युन व इन्नहु नाज़िलुन फइज़ा रअयतुमूहु। आपने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, तुम आंखों से देखोगे। अब ये मुस्नद अहमद पढ़ रहा हूँ, सही इब्ने हिब्बान पढ़ रहा हूँ, आगे 14वीं हदीस हजरत अबू हुरैरा से समेत अबुल कासिम सादिक अल मसदूक यक़ूलु यख़रुजुल दज्जाल। अब ये मैं आपके सामने ये हदीस पेश की सही इब्ने हिब्बान से। अब 14 हदीसें आपके सामने पेश हो गई, इंशाअल्लाह किसी एक का भी जवाब नहीं आया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नहीं आएंगे दज्जाल से कुश्ती ये करेंगे। वाह किसने लड़ना है? आगे 15वीं हदीस सुन ले, हजरत अबू हुरैरा से मौजमुल औसत के अंदर के इन्नहु काल ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यंज़िला ईसा इब्नु मरियम फिल अर्दि हकमन अदला। और इसी तरह इज़ा उक़ीमतुस सलात व यंज़िलु ईसा इब्नु मरियम, ये सही मुस्लिम में है, सही इब्ने हिब्बान में है। अब मैंने 15 हदीसें पेश की और मौलाना ने अभी तक जवाब नहीं दिया। अकीमुस सलात का मुनकिर काफिर है, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का इसका मुनकिर क्यों नहीं? वाह वाह भाई वाह, इल्मी नहीं, बेशक बेशक। करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप एक मिनट आप मेरे मद्दे मुकाबिल मुफ्ती साहब, खामोश मुफ्ती साहब को आपने सुन लिया। मुफ्ती साहब के पास कुरान नहीं है और रिवायात पेश की है, और जितनी भी रिवायत पेश की है मुफ्ती साहब ने एक सनद भी पेश नहीं की है। तो पता है इस सनद के अंदर एक रावी है जो बिल्कुल राफी और शिया और कट्टर है। पता है मुफ्ती साहब को अगर मैं सनद पढ़ूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। सही बात है, मुफ्ती साहब को इस बात का पता है, इसलिए मुफ्ती साहब मुतलकन फर सुनते ही मतन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब सनद एक भी पेश नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मुस्लिम शरीफ की
मुस्लिम शरीफ की आपने हदीस पेश की है, सनद पेश नहीं की, और हदीस पेश की है, सनद पेश नहीं की। मुफ्ती साहब को पता है अगर मैंने सनद पेश की तो पकड़ा जाऊंगा। क्यों? इनकी पकड़ भी इनके घर से होगी, इनकी पकड़ भी इनके घर से इंशाल्लाह करवाऊंगा, ताकि पता हो चल जाए कि घर से गिरफ्तारी हुई है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। और मैंने कहा कि ये 4 वादे अल्लाह पाक ने किए। वादे जिंदगी में होते हैं, मान गए, आप भी मानते, हमने भी माना। 4 वादे मुतवफ़ी का पहला, दूसरा। इन्होंने कहा है कि वो जमा के लिए आती है, और कुरान पाक में हवाले पेश किए हैं कि देखो वहाँ वो मुतलकन जमा के लिए आई है, और कहीं दूसरे एक लफ्ज का माना जो है वो दूसरे मफहूम में आ रहा है। मेरे भाई, अगर खुद कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला तकदीम व ताखीर करे तो अल्लाह को तो हक है, हमें किसी को हक नहीं कि अल्लाह की किसी एक आयत के जुमले को बदल डाले। मौलवी साहब देखो ये हंस रहे हैं। अगर अल्लाह ताला खुद देखो अल्लाह ताला ने बरकऊ भी कहा, वस्जुदू भी कहा, या मरीम मुकनती भी कहा, उसमें वस्जुदी पहले जिक्र किया, बरकई का जिक्र बाद में किया। इसमें कोई शक नहीं। अगर अल्लाह खुद अपनी किताब के अंदर रुकू को पहले बयान करे और सजदे को बाद में, या सजदे को पहले बयान करे और रुकू को बाद में बयान करे, किसको इख्तियार है? अब अल्लाह ताला अगर तकदीम ताखीर करे तो अल्लाह को हक हासिल है, लेकिन किसी इंसान को कुरान मुकद्दस की आयात के अंदर अपनी तरफ से तकदीम और ताखीर करने की इजाजत नहीं है। इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का, मुतवफ़ी का मैंने कहा पहले है, राफ़िउ का बाद में है। तवफ़ी का वादा पहले पूरा हुआ, राफ़िउ का वादा बाद में पूरा होगा। इन मुफ्ती साहब का कहना यह है कि नहीं, राफ़िउ का वादा पहले पूरा हुआ है, मुतवफ़ी का वादा बाद में। कुरान की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक आयत दिखाइए जिसमें रफ़ा का जिक्र पहले हो और तवफ़ी का जिक्र बाद में हो। तवफ़ी का जिक्र पहले है और रफ़ा का जिक्र बाद में है। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। देखो देखो देखो, बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं ये मुफ्ती, कुरान को बदल देते हैं ये मुफ्ती। मेरे दोस्तों सुनिएगा, ये खुद नहीं बदलेंगे। क्यों? इनके हाथ में रिवायतें हैं, इनके हाथ में अकाबरीन है, इनके हाथ में मौलवी और पीर है, गद्दी और नशीन है। हमारे हाथ में अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान। जब हयातियों से होती है कहते हैं कुरान में ये है, हयाती अल्लम फी कुबरी पढ़ते हैं, माबिन युसल्लम रद्दल्लाहु अलैहि रूही पढ़ते हैं, मन सल्लल्लाहु अलैहि अंदर कबरी पढ़ते हैं। उन सारी रिवायतों को कुरान के मुकाबले में रिजेक्ट कर दी जाती है। आज कुरान के मुकाबले में मुफ्ती साहब खुद रिवायतें पेश कर रहे हैं, मुकाबले में कुरान के मुकाबले में। और मैंने शेर पढ़ा है, अल्लामा इकबाल का, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। किस कदर फकीर आने हरम बेतौफीक, पता नहीं इनको कहां से ये इजाजत मिली है कि कुरान के अंदर तब्दीली कर दें। मेरे भाइयों, आप सारे सुन रहे हैं, मुफ्ती साहब के पास इबारतें तो हैं, मुफ्ती साहब के पास रिवायत